ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں مردوں کے ساتھ عورتوں نے بھی برابر کا حصہ لیا۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ محترمہ بی اماں کا نام اس سلسلے میں مثال کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ بی اماں کی ولادت 1852 میں ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام مظفر علی تھا۔ ان کا تعلق رئیسوں اور منصب داروں کے خاندان سے تھا۔ یہ خاندان امروہہ کا رہنے والا تھا۔ 1857 میں اس خاندان نے طے کیا کہ اگر دہلی اور میرٹھ کی طرح امروہہ میں بھی آزادی کی جدوجہد شروع ہوئی تو ہم انگریز حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی حکومت قائم کر لیں گے۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ بی اماں کے خاندان میں ہمیشہ سے اپنے وطن سے محبت پائی جاتی تھی۔ بی اماں نے بچپن ہی سے ملک کی تباہی دیکھی تھی اور انگریزوں کے مظالم کی داستانیں بھی بزرگوں سے سن رکھی تھیں۔ اس کے نتیجے میں انگریز حکمرانوں سے انہیں نفرت ہو گئی۔ شوہر کے انتقال کے بعد بچوں کی نگرانی ان کے سپرد ہوئی۔ محمد علی 2 سال کے تھے اور شوکت علی کچھ بڑے تھے۔ بی اماں نے ان دونوں بھائیوں کی تربیت اس ڈھنگ سے کی کہ آگے چل کر محمد علی اور شوکت علی نے انگریز حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ بی اماں نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اپنا زیور بھی رہن رکھ دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دونوں بھائی انگریزوں کی ظالم حکومت کے خلاف جدوجہد کریں، اور ان کی یہ مبارک خواہش پوری بھی ہوئی۔ مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی، جو علی برادران کے طور پر جانے جاتے ہیں، انہوں نے قلم اور زبان کے ذریعے انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی۔ بی اماں برابر اپنے بچوں کے ساتھ رہیں اور ان کا حوصلہ بڑھاتی رہیں۔ جب علی برادران جیل میں ڈال دیے گئے اور کچھ لوگ انگریزوں سے سمجھوتے کی بات کرنے لگے تو بی اماں نے کہا، گورنمنٹ یہ جان لے کہ اپنی تکلیفوں سے بچنے کے لیے اگر وہ علی برادران کسی ایسی بات کا اقرار کر لیں گے جو ان کے مذہبی احکام یا ملکی فائدوں کے ذرا بھی خلاف ہو تو مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک میرے قلب کو اتنی مضبوطی اور ان سوکھے جھریاں پڑے ہاتھوں میں اتنی طاقت دے دے گا کہ اسی وقت ان دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی۔ بی اماں کے اس بیان سے ان کی حوصلہ مندی، جرأت، مذہب اور وطن سے گہری محبت صاف ظاہر ہوتی ہے۔ مارچ 1924 میں بی اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ انہیں امروہہ سے فوراً رامپور لایا گیا۔ علی برادران اپنی ماں سے ملنے کے لیے رامپور آئے، لیکن انگریز حکومت نے انہیں ریلوے اسٹیشن پر روک دیا۔ جب ان کی خبر بی اماں کو ملی تو وہ خود بیماری کی حالت میں اسٹیشن آ گئیں اور اصرار کیا کہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں گی۔ مجبوراً ان کو دہلی لایا گیا۔ ان کی خواہش تھی کہ ہندوستان کی آزادی اور ہندو مسلم اتحاد کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آخر بی اماں اسی خواہش کو لیے ہوئے 13 نومبر 1924 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بی اماں کے پیغام کو کسی شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے، بولیں اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ جدوجہد کا مطلب ہوتا ہے شدید اور لگاتار کوشش۔ شدید یعنی شدت، پرشدت۔ ولادت مطلب پیدائش۔ منصبدار یعنی عہدیدار یعنی ریپیوٹڈ۔ مظالم یعنی ظلم کی جمع، زیادتی کرنا یا ستانا۔ سپرد کرنا یعنی حوالے کرنا۔ تربیت یعنی پرورش۔
रहन यानी गिरवी, किसी चीज़ को दूसरे के पास पैसा लेकर कुछ मुद्दत के लिए रखना। इकरार यानी मानना, तस्लीम करना। जर्रात यानी हिम्मत। इत्तेहाद यानी एका, मेल जोल। और निगरानी यानी देखभाल, हिफाजत। ठीक है, और करने की बात पे ज़रा आ जाते हैं। ये सबक बी अम्मा और इनके दो बेटों मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली के ईसार व मोहब्बत और कुर्बानी का दरा है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है बी अम्मा के शुरुआती दौर के हालात से। हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में मर्दों के साथ औरतें भी शामिल थीं, है ना, उन्होंने बराबर का हिस्सा लिया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की वालिदा थी जिनका नाम था मोहतरमा बी अम्मा। ठीक है, और इस सिलसिले में ये एक मिसाल की तरह है। बी अम्मा जो हैं, बी अम्मा की पैदाइश 1852 में हुई और इनके वालिद का नाम मुज़फ़्फ़र अली था। ठीक है, और रईसों और मनसबदारों से इनका ताल्लुक़ था, यानी काफ़ी रेप्यूटेड और रिच फैमिली से ये बिलोंग करती थी, पैसे वालों के घर से बिलोंग करती थी। ठीक, और ये ख़ानदान अमरोहा का रहने वाला था। अमरोहा यूपी की एक जगह है, उत्तर प्रदेश की, है ना। 1857 में इस ख़ानदान ने ये तय किया कि अगर दिल्ली और मेरठ की तरह अमरोहा में भी आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हुई तो वो लोग अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ चले जाएंगे। ठीक है, तो बी अम्मा के ख़ानदान में हमेशा से ही अपने वतन के लिए मोहब्बत पाई जाती थी। इससे हमें ये पता चलता है बी अम्मा ने बचपन से ही मुल्क की तबाही देखी थी, अंग्रेज़ों के ज़रिए जो जुल्म हो रहे थे वो देखे थे, अंग्रेज़ जिस तरह के जुल्म कर रहे थे वो सब उन्होंने अपनी देखा था अपने बचपन में। और ये हुआ इसके बाद कि जब इनके शौहर का इंतकाल हो गया तो उसके बाद में बच्चों की ज़िम्मेदारी इन पर आ गई। तो दोनों बच्चों की निगरानी की इनके सुपुर्द हुई और मोहम्मद अली 2 साल के थे उस वक्त और शौकत अली कुछ बड़े रहे होंगे, है ना। बी अम्मा ने दोनों भाइयों की तरबियत ऐसे की कि आगे चलकर दोनों अंग्रेज़ी हुकूमत को हिला कर रख दिया दोनों भाइयों ने। बी अम्मा ने अपने बच्चों की तालीम के लिए अपना जेवर भी रहन रख दिया, यानी जाहिर सी बात है कि अब क्योंकि बच्चों को पालने की ज़िम्मेदारी और पढ़ाई की ज़िम्मेदारी जब इनके ऊपर है तो सारा खर्चा भी इन्हें उठाना है, और उसके लिए फिर इनका जो जेवर था, इनके जो ज्वेलरी थी, वो ज्वेलरी इन्होंने सारी अपनी गिरवी रख दी। और वो ये चाहती थी कि तालीम हासिल करने के बाद दोनों भाई अंग्रेज़ों के जुल्म और हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करें, यानी स्ट्रगल करें। और बाद में चल कर के ये उनकी ख्वाहिश पूरी भी हुई। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली जो थे वो अपनी कलम और अपनी ज़बान के ज़रिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी उन्होंने, और बी अम्मा बराबर से अपने बच्चों के साथ रहीं और इनका हौसला बढ़ाती रहीं। और जब अली बरादरान यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली को जेल में डाल दिया गया तो उस वक्त कुछ लोगों ने अंग्रेज़ों से समझौते की बात करने लगे, यानी कुछ लोगों ने कहा कि आप अंग्रेज़ों से समझौता कर लीजिए, जेल में क्यों है, जेल से बाहर आ जाइए, है ना। तो इस वक्त बी अम्मा ने कहा कि गवर्नमेंट ये जान ले कि अपनी तकलीफ़ों से बचने के लिए अगर वो यानी कि अली बरादरान अगर वो किसी ऐसी बात का इकरार कर लें जो इनके मजहबी अहकाम या मुल्क की फ़ायदों के ज़रा भी ख़िलाफ़ हो, तो मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक मेरे क़ल्ब यानी कि मेरे दिल में और मेरे क़ल्ब को इतनी मजबूती और इन सूखे झुर्रियाँ पड़े हाथों में इतनी ताकत दे देगा कि मैं इसी वक्त इन दोनों का गला घोंट दूँगी। ठीक है, यानी कि माँ हूँ और माँ होते हुए भी अगर इन दोनों ने कोई भी ऐसी बात स्वीकार कर ली जो कि इनके मजहबी अहकाम यानी हुक्मों के ख़िलाफ़ है या इनके मुल्की फ़ायदे के ख़िलाफ़ है, यानी इनके मुल्क के फ़ायदे के ख़िलाफ़ है, तो मैं माँ होते हुए भी अपने दोनों बेटों का गला घोंट दूँगी अपने इन्हीं हाथों से। ठीक है, तो ये कहना भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में बी अम्मा के इस बयान से लोगों को बहुत हौसला उनका बंधा और ये भी पता चलता है कि वो कितना दृढ़ निश्चय उनका था कि नहीं, हमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जाना है तो जाना है। कौन माँ अपने बच्चे का गला घुटने को कहती है ना। तो फिर इसके बाद में मार्च 1924 को हम ये देखते हैं कि बी अम्मा की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। ठीक है, 52 की पैदाइश थी उनकी, तो उम्र काफ़ी हो चुकी थी और इन्हें अमरोहा से फ़ौरन रामपुर लाया गया। रामपुर भी यूपी की ही एक जगह है। ठीक है, तो अमरोहा से इन्हें रामपुर लाया गया और अली बरादरान
अली बरादरान जो थे वो अपनी माँ से मिलना चाहते थे, तो वो रामपुर आए, लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत ने इन्हें रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया। और रेलवे स्टेशन पर रोक देने की वजह से क्या हुआ कि जब इसकी खबर भी अम्मा को मिली तो वो फ़ौरन खुद ही स्टेशन आ गई, और स्टेशन से फिर उन्होंने इसरार किया, यानी एक रिक्वेस्ट की, एक ऑफ़र या एक कह सकते हैं एक प्रपोज़ल रखा कि तुम यहाँ नहीं आ सकते, तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, ठीक है, दिल्ली चलती हूँ। तो वो दिल्ली गई, और दिल्ली जा कर के उन्होंने वो अपने आँखों से देखना चाहती थी हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, यानी हिंदू मुस्लिम एकता को वो अपनी आँखों से देखना चाहती थी, और उन्होंने वो देखा भी। और उसके बाद में फिर बी अम्मा का आखिरी वक्त था, और उसमें 13 नवंबर 1924 को बी अम्मा ने दुनिया से रुखसती ले ली, यानी वो इनका इंतकाल हो गया, डेथ हो गई उनकी। उसके बाद में बी अम्मा के पैगाम को किसी शायर ने इस तरह बयान किया है, बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा, यानी मोहम्मद अली की अम्मा बोली, अम्मी बोली, मदर बोली कि जान बेटा खिलाफत पे दे दो। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर बी अम्मा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।